Viewers, in a big breaking news, an ID blast on security forces vehicle in Bijapur district has been reported. At least 7 security personnel have been killed in action as per sources. This is huge. It comes from the Bijapur district where an IED blast has killed at least 7 security forces personnel in action. These are the visuals of the IED blast, where the IED hit the 7 security forces personnel who have now been killed in action in the Bijapur district. These are the live visuals on your screens from the IED blast. At least 7 Jawans, 7 security personnel have been killed in action. The stills are yet to be confirmed, but these are what we've gotten from the first sources in the latest IED blast, which has claimed the lives of at least 7 security personnel who've been killed in action. The IED blast hit the security forces vehicle in Bijapur district just moments from now, and 7 security personnel have been killed in action as per the sources. Just a few minutes back, we also showed you the first visuals of the IED blast, though the visuals are not completely confirmed as of yet. The sources have said that that is the area and the location where the IED blast took place, which claimed the lives of 7 security personnel in action. We're also being joined by my colleague Samiksha live from the newsroom to get us more updates on the story. Samiksha, tell us more about this. At least 7 security personnel have been killed in action over an IED blast which was targeted at a security forces vehicle in Bijapur district. This is huge. Tell us more about this. What are the security arrangements being made as of now after the IED blast took place? Samiksha. There is some audio issue and we will get through my colleague's audio in some time. But for now, just to give you a quick recap, viewers, an IED blast was reported in Bijapur district on the security forces vehicle where at least 7 security personnel have been killed in action. We're being rejoined by my colleague Samiksha from the newsroom. Samiksha, the same question. 7 security personnel killed in action, 1 IED blast reported on the vehicle. Tell us more about this. That's right, Gesu. Like I was telling earlier, Bijapur Bastar region is the hotbed of red terror. There have been a spate of Maoist activities. Of course, there's been rampant crackdown over the last few months and over the last 2 years. But specifically talking about this incident, the ADGP of Bastar range has confirmed to Republic that 7 security personnel have been killed in action. In fact, talking about the details that we are picking up about this particular attack, the IED blast in which the army vehicle was ambushed. This is the region very close to the Bijapur district where the IED blast was carried out on the army personnel vehicle. The Bijapur district where an IED blast was reported. This is the convoy of the army vehicle that was targeted. In fact, we are picking up details regarding that exact area where the army personnel vehicle was ambushed. This is in Dantewada region. 9 people, 8 Dantewada DRG Jawans and 1 driver lost their lives after their vehicle was blown up by Maoists through an IED blast. In fact, this is a statement, Gesu, that's coming in from the IG Bastar, who's confirmed that 9 personnel have lost their lives. 9 people, 8 Dantewada DRG Jawans, 1 driver who lost their lives after their vehicle was targeted. It was ambushed by the Maoists earlier today. They were returning after a joint operation in Dantewada region. Gesu, just to put the facts on record, it's a known fact that Dantewada, the Bijapur region, has been the hotbed of the Maoist activities. In fact, the area where the vehicle was ambushed is very close to the forested area where the activities have been on the rise. Once again, reading the statement that's coming in from the IG Bastar, who says that an IED blast occurred on security forces vehicle in Bijapur district. 9 personnel who lost their lives, 8 Dantewada DRG Jawans and 1 driver who lost their lives in this IED blast. Yes.
Right. Samiksha, also any clarity on which force were the security personnel from? Because the first that we had gotten to know was that seven of the security personnel were martyred. They were killed in action in the ID blast. Tell us more about this. In fact, Samiksha, I'm just getting in more information right now. At least 8 security personnel have been killed in action. I'm guessing that the report that we got before this, at least one, there was hope that that security personnel would survive the ID blast. But now it's clear that at least 8 of them have been killed in action. Samiksha, take it away. Tell me more. That's right, Gesu, and now we have the confirmation, unfortunately, that's coming in from the IG of Bastar region, who says that 8 people have lost their lives, which includes 8 Datewala DRG Jawans and 1 driver, Gesu. But as we speak, we are being joined by a journalist from Chhattisgarh itself. We'll try to get the exact location of the journalist, but Shirish Mishra, Gesu, is joining us. Mr. Mishra, if you can tell us more details about this operation. The joint operation that was being carried out by the army, by the personnel, after which, while they were returning, their vehicle was targeted by the Maoists. ऐसा है कि ये नारायणपुर बीजापुर की दोनों की पुलिस पार्टी थी। एक कंबाइंड का ऑपरेशन था एरिया डोमिनेशन के लिए। जो पार्टी जाती है उस जब पार्टी ऑपरेशन के बाद लौट रही थी, उसी समय नक्सलियों ने ये जो आईडी ब्लास्ट जब सड़क बनाते हैं उस समय वहां पर जमीन के अंदर ये आईडी लगा देते हैं, और जब इनको कोई नुकसान करना होता है तब ये उसके तार जोड़कर उसका नुकसान करते हैं। जब पार्टी लौट रही थी तो उस समय नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें जो अभी तक पुलिस की जानकारी है उसके अनुसार 8 की बात बताई जा रही है। एक जिसमें ड्राइवर भी है, 8 जवान है और एक ड्राइवर, एक शहीद होने की बात की जा रही है। लेकिन जब तक अभी ना तो मीडिया के लोग वहां तक पहुंच पाए हैं, ना पुलिस की जो उनकी रीइंफोर्समेंट पार्टी है वो पहुंच पाई है। जैसे ही वो पार्टी पहुंचेगी तब इस मामले में और ज्यादा जानकारी आएगी। लेकिन जो रास्ता बताया जा रहा है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड पुक्रू बेदरे रोड। ये बीजापुर जिला है जहां पर ये बहुत सेंसिटिव है। बीजापुर और नारायणपुर अभी भी वैसे फोर्सेस बहुत अंदर तक जा चुकी हैं, बहुत जगह कैंप बन रहे हैं। लगातार अमित शाह का कहना भी है कि हम अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, और अभी लगातार उनका बस्तर प्रवास भी हुआ। 2 दिन वो बस्तर में थे। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने, ऐसा माना जा रहा था बीच में कि नक्सलियों की ताकत घट रही है, लगातार उनका कैडर घट रहा है, यहाँ पर उनका नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, वैसा अभी 2 दिनों की घटनाओं से ऐसा नहीं लगता। 2 दिन में लगातार, कल भी एक जवान शहीद हुआ और आज ये 9 जवान, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर है, इसके शहीद होने की जानकारी है। Right, Mr. Shirish, I also want to ask you one more thing. At least 8 people, 8 security personnel, they have been killed in action, and साथ में एक ड्राइवर। आप मुझे ये भी बताइए, we will also ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान, और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली है, झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। You heard the Chhattisgarh Chief Minister right there, who said that the government will not be bent by the attack on the security personnel, and the intentions of the Maoists will not be allowed to flare. And I beg your pardon, this was the ex-Chief Minister Chhattisgarh. Keeping on to the story, just to give you a quick recap, at least 8 security personnel, including 1 driver, has been killed in an ID blast in the Bijapur district in Chhattisgarh. Shirish continues to join us on the broadcast to get us more on the story. Shirish, what do you think the next steps will be? Is there any information on whether or not there were more people or more security personnel who were on the spot as the ID blast happened? In fact, the ex-Chief Minister's statement says that the government will not be deterred by such attacks. Tell us more about this, Shirish.
देखिए, जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी जो 15 साल यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, ही इज नाउ स्पीकर ऑफ विधानसभा छत्तीसगढ़ असेंबली। ही वाज सेइंग कि जो हमारे पास अपडेट है, जो आपने बताया, उससे उन्होंने एक संख्या और बढ़ाई, करीब 10 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि 10 जवान शहीद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रारंभिक जानकारी है, ये आगे बढ़ भी सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि उस जो व्हीकल थी, जो उसमें कितने जवान थे, ये नॉर्मल व्हीकल थी कि माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल थी, अभी ये बहुत क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि वहां पर लगातार नक्सली इलाकों में अलग अलग ऑपरेशंस चलते रहते हैं और एसपी अभी इस स्थिति में नहीं होंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, की वो इतना डिटेल बता सकेंगे। जब तक पार्टियां बाहर नहीं आएंगी, तब तक इस बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं हो सकता कि एक्चुअल जो नुकसान हुआ है, जो वो कितना है, कितने जवान शहीद हुए हैं, अभी एकदम कहना मुश्किल है, क्योंकि घटना ही 2:15 बजे की है, करीब करीब 1.25 घंटे पहले की घटना है, 1.5 घंटे पहले की घटना है। तो जब तक जवान जो रीइंफोर्समेंट के लिए पार्टी गई है, क्योंकि वहां जाना अभी एक खतरे से खाली नहीं होता, नक्सलियों को ट्रैप भी होता है। जब इस तरह का जवान शहीद होते हैं तो नक्सली आसपास के इलाकों में मौजूद होते हैं, ताकि जो फोर्स आए उसको ट्रैप में फंसा कर और फर्दर नुकसान किया जा सके। तो फोर्सेज जब वहां जाती हैं तो बहुत एहतियात के साथ जाती हैं, लेकिन आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है। शिरीष मिश्रा जी हमारे साथ बने रहिए। द विजुअल्स ऑन आवर स्क्रीन्स इज फ्रॉम दैट वेरी लोकेशन। दिस इज सेड टू बी द अम्बेली विलेज ऑन कुथरू बेदरे रोड इन बीजापुर, वेयर ID blast was carried out. Army vehicle that was the convoy that was targeted by the Maoists. शिरीष मिश्रा continues to be with us. मिश्रा जी, थोड़ा हमें बताइए इस एरिया के डेमोग्राफी के बारे में। कहा जा रहा है कि ये बीजापुर के अम्बेली विलेज जो एरिया है, वहां पे अटैक हुआ था। उस एरिया के बारे में बताइए, वो कितना सेंसिटिव एरिया है और वहां पे माओइस्ट की प्रेजेंस कैसी है? देखिए, अभी तक जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो 7 जिले हैं, उसमें से कुछ जिलों में नक्सलवाद बहुत कम हो चुका है। जैसे कांकेर में नक्सलवाद कम है, कोंडागांव में स्थिति नक्सलवाद की कंट्रोल में है, बस्तर जिले में कंट्रोल में है, लेकिन कुछ जो बीजापुर का कुछ हिस्सा और नारायणपुर का कुछ हिस्सा है, वो अभी भी नक्सलियों के कंट्रोल में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी भी नक्सलियों के प्रभाव में, जहां पर वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते। पर पहले जैसी उनकी प्रेजेंस, पहले जैसा उनकी जो पकड़ थी, वो नहीं है। और बीजापुर नक्सलियों का बहुत हार्टलैंड है, जहां पर वो नक्सली बीजापुर और नारायणपुर में काम करते हैं। खासतौर पर जैसे एक वहां पर लोकेशन है जगरगुंडा, जहां पर 30 साल बाद पुलिस ने सड़क को खोला है और लगातार कैंप में नक्सलियों के जो हार्डकोर एरिया है, वहां तक पुलिस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस जब भी बढ़ती है आगे, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ती हैं, और जब भी कंबाइंड ऑपरेशंस होते हैं, तो नक्सलियों की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है, ये बताने के लिए कि ये जो एरिया है वो हमारे होल्ड का एरिया है, ये हमारे डोमिनेशन का एरिया है। और जब फोर्सेस एरिया डोमिनेशन करके लौटती हैं, तो ऐसा देखा गया है, नॉर्मली ये पाया गया है कि फोर्सेस थोड़ी लापरवाह हो जाती है, या वो थक चुके होते हैं जवान, या उनके साथ के लोगों को लगातार 48 घंटे 72 घंटे, मतलब 3 दिन 4 दिन उनको जंगली इलाके में रहना पड़ता है, जिसके जहाँ का टेरेन ऐसा है कि वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत घनघोर जंगल है, विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो पुलिस के लिए बहुत तरह की दिक्कतें हैं, खाने पीने से लेके मूवमेंट की दिक्कतें। और जब सड़कें बनती हैं नक्सली इलाके में, तो नक्सली उस दौरान अपने ID को वहां पर लगा के रख चुके होते हैं। और हालांकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत हद तक डिमाइनिंग किया हुआ है, बहुत इसमें ITBP और BSF वगैरह ने डिमाइनिंग में बहुत ज्यादा, राजनांदगांव These are the fresh visuals that we're getting from the Bijapur district in Chhattisgarh, where an IED blast took the lives of at least 8 security personnel who were in action. One driver, along with the 8 security personnel, has also been killed by the IED blasts by Maoists. These are the live visuals. We're constantly being joined by a journalist from Chhattisgarh, Shirish Mishra. Shirish, आप ये भी बताइए मुझे, आज सुबह रिपोर्ट्स हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओइस्ट्स के ठिकानों पे अटैक्स किए थे, जहां 5 रिबेल मारे गए थे। उसके बाद ये रिटेलिएटरी अटैक किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जहां एक स्कॉर्पियो SUV पे ID ब्लास्ट हुआ और 8 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, उनके तहत एक ड्राइवर भी। इस अटैक के बारे में और इस रिटेलिएटरी अटैक्स जो माओइस्ट्स कैरी आउट करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए शिरीष।
देखिए, माओइस्ट की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो फोर्सेस को ये संदेश देने की कोशिश करें कि आप जिस एरिया में एंटर कर रहे हैं वो हमारे डोमिनेशन का एरिया, वो हमारे पकड़ का एरिया है, और यदि आपने यहाँ पर आके हमारा नुकसान किया तो हम भी आपका नुकसान करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान होगा इसकी आशंका नहीं थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत समय बाद इतना बड़ी कैजुअलिटी सामने आई। इसके पहले साल 2 साल पहले इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी घटना जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं विष्णुदेव सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था लगातार कि नक्सलियों के जो बड़े कैडर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और नया रिक्रूटमेंट उनको नहीं हो रहा है, और साथ में जो उनकी फंडिंग जहां से हो रही थी सरकार ने उस लाइन को भी बहुत हद तक डैमेज किया है, और साथ में जहां जहां से लोग उनको मदद कर रहे थे वहां भी सरकार ने कंट्रोल किया है। लेकिन इस घटना ने फिर साबित किया कि नक्सलियों ने अपनी ताकत को रिगेन किया है। जो बीच में वो शांत दिखाई दे रहे थे, जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी, इस घटना ने साबित किया है कि वो लगातार जिन इलाकों में जहां पर उनका थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा हुआ है, जहां उनका थोड़ा बहुत प्रभाव है, वहां पर वो फोर्सेस को नुकसान करने की स्थिति में है। जी मिश्रा जी, हमें थोड़ा इस बारे में बताइए कि इस एरिया जो कि कहा जाता है कि बहुत एक सेंसिटिव एरिया है, अंबेली विलेज बीजापुर में, वहां पे कितने माओइस्ट रहने की आशंका है एक, और कितने पर्सनल अगर आप कंफर्म कर सकते हैं उस कॉन्वॉय में ट्रैवल कर रहे थे जब आईडी ब्लास्ट हुआ? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी ये मालूम करना मुश्किल है कि जो कन्वॉय था उसमें एक व्हीकल में ये लोग थे कि कई व्हीकल में थे, या एमपीवी में थे कि नॉर्मल व्हीकल में थे, ये अभी बताना मुश्किल है। और जैसा कि आपने पूछा सवाल कि उस एरिया में कितने नक्सली, तो ये एक मोटे तौर पे बताना मुश्किल है, क्योंकि नक्सली मूवमेंट में रहते हैं। ये जरूर रहता है कि उनका बेस रहता है जहाँ उनके प्राइमरी मेंबर्स होते हैं, जो कभी गांव वालों की शक्ल में होते हैं, कभी उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होते हैं। Alright, we have more statements coming in from the government on this ID blast in Bijapur that targeted army personnel vehicle. जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं, सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। So That was the statement from the Deputy Chief Minister Arun Sao, who has expressed his condolence to the soldiers who were killed in action, the DRG soldiers, and has also condemned the cowardly attack by the Maoists